Hello student, how are you? How is going your study? Very good, very well, fantastic, fabulous. Today our topic is current electricity. So what is the meaning of current? Do you know about the current? Current is rate of flow anything. What is current? Current is rate of flow. Current is rate of flow anything. Sir, why anything? Why anything? I am saying, sir, air is flowing, that is air current. Water is flowing, that is water current. Got the point? If charge are flowing, net charge. Okay, if there is a net flow of charges, it means there is a electric current. Got the point? Clear हुआ? Current का जो basic meaning है, that is rate of flow of anything. But we are going to talk about current electricity. Ready for that? Yes. Yes, dear student. Electric current. What is electric current? It can be defined as the rate of flow of net charge through any cross-section area. Through any cross-section area. Sir, why are you saying net charge? And what is cross-section area? Let's consider this is the cylindrical wire. Okay. When I cut a perpendicular its length, then you will observe this circular area, and that is cross-section area. Okay. Now, why are you considering net charge? Simple say rate of flow charge. Sir, that will be wrong if I'm saying that simple rate of flow charge is electric current. नहीं, गलत है वो. क्यों? चेक करते हैं. I am saying plus 5 coulomb flowing left to right. I am saying minus 5 coulomb flowing from left to right. What is the net current? According to you, there will be some current exist because आप कह रहे हो फ्लो ऑफ चार्जेस, तो चार्ज तो फ्लो हो रहा है 5 कूलम माइनस 5 कूलम, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट विल बी जीरो बिकॉज आई एम सेइंग दैट नेट चार्ज पर यूनिट टाइम, यू कैन से नेट चार्ज प्लस 5 माइनस 5 टाइम होगा जो भी 0 एम्पियर. एम आई राइट? कितना आएगा? 0 एम्पियर. ओके, इफ आई एम सेइंग दैट another, you can say, that's why I am saying we should consider net charge. We should consider net charge. Okay, so I am giving a formula for electric current. I is equal to net charge वहाँ लिख चुके हैं upon time. Got the point? Simple formula you can write Q net. Q is the electric charge upon time. What is the SI unit? If we talk about the SI unit of I, SI unit of the current, tell me. So electric charge is the unit of coulomb and time is the unit of second. So you can say coulomb for second in simple, and it is known as ampere. It is known as ampere. Dear student, so SI unit of the electric current is ampere, and electric current is the one of the fundamental quantity among the seven जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनमें से इलेक्ट्रिक करंट एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है. यस, तो यहाँ से आपको पता लग ही गया है. इफ वी टॉक अबाउट द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, दैट विल बी A1. M0 L0 T0 आप राइट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, या फिर डायरेक्ट लिखें A1. ओके, नाउ आगे चलते हैं. यस मैजिक. अच्छा, इसका स्टेट यूनिट अगर हम बात करें, सीजीएस यूनिट, वी टॉक अबाउट सीजीएस यूनिट. सीजीएस यूनिट इसका जो होगा दैट इज द एवी एम्पियर. दैट इज द एवी एम्पियर. यू कैन से एवी एम्पियर. ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में बोला जाता है. What the point? So 1 AV ampere is equal to 1/10 ampere होता है. Yes student, if we talk about the CGS unit, that will be AV ampere. 1 AV ampere is equal to 10 ampere, and AV ampere also known as watt. Symbol is watt. Got the point? 1 ampere is equal to 1/10 watt हो जाएगा. से अगर हम रिलेशन लिखें तो ये हो जाएगा 1/10 watt, और you can say AV ampere. Okay, next चलते हैं. Yes magic. Student, electric current is a scalar quantity. I am saying scalar quantity. Okay, and the conventional direction of electric current is along the flow of positive charges. ठीक है sir, and you can say opposite to the flow of negative charges. Don't say in the opposite direction of electrons. Okay, because electron का डिस्कवरी बाद में हुआ था. पहले जो बताया गया डायरेक्शन
along the positive charges, or you can say in opposite to the negative direction. ठीक है सर, but we have studied that a quantity which have magnitude and direction that should be vector quantity. But you are saying that current is a scalar quantity, and but current has like that you can say 5 ampere, and its direction you defining along the positive charge. So it consists both direction and magnitude. Why should not be a vector quantity? करंट को वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं होना चाहिए? स्केलर क्यों बता रहे हैं सर आप? वेक्टर होनी चाहिए ना, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है. तो रिमेंबर वन ऑफ द मस्ट थिंग, स्केलर क्वांटिटी बिकॉज आई एम मेंशनिंग हियर बिकॉज it doesn't follow what? Vector sum लो. वेक्टर सम लो. सर ये कौन सा सम आ गया? जिस तरह से एल्जेब्रिक सम होता है 2 + 3 = 5. ओके, व्हेन आई से 3 न्यूटन + 4 न्यूटन, टेल मी, आप देंगे आंसर देंगे 7 न्यूटन, तो मैं कहूँगा कि इट इज़ नॉट वैलिड इन ऑल कंडीशंस. सर हाउ? लेट्स चेक. एक एग्जांपल ले लेते हैं. आई एम सेइंग दिस इज द ब्लॉक एम, a balloon applying 3 Newton this side, another balloon applying 4 Newton, then what is the resultant force? Sir, you will say it will be 3 square plus 4 square, that is the 5 Newton. ये भी तो सम है, ये भी तो रिजल्टेंट है, 3 न्यूटन + 4 न्यूटन. सही है सर? नो, am I right? ये जो रिजल्टेंट आ गया वो आ गया 3ik + 4jk, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? सम ही तो है ये. तो ये कौन सा सम है? वेक्टर सम. सर ये भी तो कंडीशन हो सकती थी, एक बालक 4 न्यूटन से इधर खींच रहा है, दूसरा बालक 3 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो एफ नेट कितना आ जाएगा यहाँ पे? रिजल्टेंट, यू कैन से रिजल्टेंट. सर 4 - 1 4 - 3 = 1 न्यूटन. कहाँ गया आपका 7 एक स्पेसिफिक कंडीशन में आ सकता था, द बोथ अप्लाइंग इन सेम डायरेक्शन, then you can say 3 + 4 = 7 Newton. But I am talking about the current. I am talking about the 2 ampere + 3 ampere. You say 5 ampere. Why? Let's understand here. So this is the condition. Okay, 2 ampere and 3 ampere. What is the value of resultant? Sir, you will say 2 + 3, you can say 5 ampere. सर कैसे बोल रहे हो? 3 को 2 बोल रहे हो, 2 को 3. यस, यहाँ से अगर मैंने एंगल चेंज किया, करंट आपका 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, एंगल 60 डिग्री है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 5 एम्पियर. सर द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट वैल्यूज डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन देम. उन पे कितना एंगल आप लगा रहे हैं, 90 है, 60 है, डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल, इट मीन्स डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन. इफ a sum which is independent of the direction, that is algebraic sum, and algebraic sum कौन follow करता है? Scalar quantity. That's why current is a scalar quantity. Okay, but force follow depends on the direction. दोनों के बीच में 90 था तो 5 आया, दोनों पैरेलल थे, दोनों के बीच में एंगल 0 था तो कितना आ गया? 7. दोनों अपोजिट थे, दोनों के बीच का एंगल था 180, तो रिजल्टेंट आ गया 1 न्यूटन. So force some of the force depends on the direction. Okay, that's why force follow vector sum law. So that's why force is a vector quantity but current is not a vector quantity. I think clear हुआ होगा. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. Yes, चलते हैं नेक्स्ट. Yes magic, please wipe the board. Yes student. Now I am going to discuss about the some formula related to electric current. Steady current. What do you mean by steady current? Steady current means the rate of flow of charge doesn't change with respect to time. 1 सेकंड में 2 कूलम फ्लो हो रहा था, नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 कूलम फ्लो हो रहा है, नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 कूलम फ्लो हो रहा है. इट मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, सो दैट इज द स्टेडी करंट. टाइम के रेस्पेक्ट में वैल्यू ना चेंज हो करंट की, दैट इज द स्टेडी करंट. जैसे अपने सेल होते हैं, सेल वगैरह जो भी आप सेल लगाते हैं वहाँ से स्टेडी करंट मिलती है. ठीक है, दैट इज द स्टेडी करंट. ओके, जो करंट मिलेगी वो कांस्टेंट मिलेगी, स्टेडी मिलेगी. सर ट्रांजिट करंट भी होता है. यस, ट्रांजिट करंट जैसे थंडर स्टॉर्म होता है ना, थंडर स्टॉर्म बादलों से बिजली आती है, दैट इज द ट्रांजिट.
ट्रांजिट का मतलब समझ रहे हो, चेंज हो जाती है टाइम के रेस्पेक्ट में, वहाँ से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, नीचे पहुँचते पहुँचते कम हो जाती है, लेकिन वो भी कम नहीं है, बहुत तेज़ है। यस, तो स्टडी करंट हो गया I इजिकल टू क्यू अपॉन टी। इंस्टेंटेनियस करंट, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस? एट ए इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट यानी किसी टाइम पे, किसी टाइम पे। जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो आपका दोस्त भी बाइक चला रहा है, स्कूटी चला रहा है, ठीक है। उसने पूछा कि व्हाट इज द योर बाइक स्पीड, तो उसी समय जब पूछा उसी समय आपने देख के बताया, ठीक है, कि 20 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्पीड, सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर से चला रही है आपकी बाइक। तो अब ये बताओ, जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने जो बोलने में भी तो कुछ टाइम लगा होगा, ठीक है, लेकिन हम उसको क्या लेते हैं? एट ए इंस्टेंट। जब उन्होंने पूछा और आपने बताया तो उसमें नेग्लिजिबल टाइम गैप था, नेग्लिजिबल टाइम गैप था। एट ए इंस्टेंट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है। जैसे ही उन्होंने बोला आपने तुरंत बता दिया, तो नेग्लिजिबल है लेकिन है ज़रूर, ठीक है। तो दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस, ओके। ऐसे ही हम किसी करंट चार्ज फ्लो की बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए बात करेंगे कि इस पर एट 2 सेकेंड, एट 5 सेकेंड कितना करंट फ्लो हो रहा है वहाँ पे। तो डी क्यू अपॉन डी टी यानी डिफ्रेंशिएशन कर देना है। क्या कर देना है? डिफ्रेंशिएशन कर देना है किसी भी चार्ज इक्वेशन का। और अगर करंट का इक्वेशन दे रखा है तो उसमें डायरेक्ट टाइम की वैल्यू रख देंगे, t इजिकल टू 2 सेकेंड, t इजिकल टू 1 सेकेंड। अभी न्यूमेरिकल कराएंगे, सो रेडी फॉर दैट। हाँ, एवरेज करंट आप जानते ही हैं। यस, ऊपर लिखेंगे नेट डेल्टा क्यू यानी चेंज, नेट चार्ज फ्लो डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। यू कैन राइट लाइक दिस, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइड बाई T2 माइनस T1। सो रेडी हो न्यूमेरिकल के लिए? यस मैजिक, प्लीज वाइप द बोर्ड। Yes dear student, we have a simple question. Try करें पहले, फिर आप चेक करें. That is the good thing. Yes, if a current flows through any cross section per second is 1 ampere, then find total number of electron crossing the cross section area. Okay sir, you are saying that this is the cross section area of a wire. This is the cross section area of a wire and there is a current flowing 1 ampere. करंट कितना फ्लो हो रहा है यहाँ से? That is the 1 ampere. And you asking me, sir, how many electrons flowing through that? Okay, first of all find Q and then we will easily find electron by applying quantization of electric charge. Okay, how will that, sir? We know that I is equal to Q upon T. Got the point? And Q is equal to any from quantization of electric charge. शाबाश, बहुत बढ़िया, याद है फर्स्ट चैप्टर से? Q is equal to any. So put the here I is equal to any upon T and put the value 1 ampere. And हमें फाइंड करना है E. We know that charge magnitude of electron and T is 1 second, ठीक है, per second. Yes, from here N is equal to that value is 1 upon E and you know. Now dear student, we have I is 1 ampere and E T is the 1 second. From here N is equal to 1 upon E. Got the point? So from here we can find the value of, you know, E. What is the value of E? E is the 1.6 10 to the power minus 19 coulomb, isn't it? When you put the value of this you will find, याद रखिएगा 1.6 10 to the power minus 19. When you solve it you will find 0.625 into 10 to the power 19, positive 19. Yes dear student, so pay your attention. From here I is equal to 1 ampere and T is 1 second. From here we find N is equal to 1 upon E and E, you know the magnitude of the charge on electron, that is 1.6 10 to the power minus 19. When you solve it what will you get? So 0.625 10 to the power 19. and जैसे ही आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मस्ट रिमेंबर दिस 1 upon E, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड करने पे आ ही गया वहाँ पे। इसको पॉइंट यहाँ से कम करेंगे, यहाँ से पावर कम हो जाएगी और
सारे पॉइंट अगर आप रिमूव कर रहे हैं तो 10 to power 16 रिजल्ट मस्ट रिमेंबर, मोस्ट ये न्यूमेरिकल में डायरेक्ट आप सोल्व कर पाएंगे अगर आपको ये रिमेंबर है। गो द पॉइंट। सो बने रहें, लाइक करें, नेक्स्ट के लिए रेडी रहें। यस मैजिक प्लीज बाय द वर्ड। Hello dear student, we have another question in which the question is saying that a wire carries a current of 2 ampere. Okay, a wire carries current of 2 ampere. What is charge flow through its any cross section in 2.0 second? Okay, this is the 2.0 second. How many electrons do corresponded to it? और इलेक्ट्रॉन भी कितने फ्लो होंगे उतने टाइम में? You have to reply this. कैन यू रिप्लाई दिस? राइट करें, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे, विच वन इज करेक्ट, लेट्स सी वो इज करेक्ट। ओके, ट्राई करना अच्छे से और आंसर दीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। यस मैजिक, वाइट दिस। Yes dear student, we have another question that is very important question. Let's check. In a given cross section for 10 second, in a given cross section for 10 second, 40 electrons flows from right to left and 40 protons flow from left to right. Is there average current is 0? If not, then find its value. आपको जीरो करंट है क्या? एवरेज करंट पूछा जा रहा है। एक वायर है, वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 40 इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो हो रहे हैं राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट। लेट्स चेक। पहले आप ट्राई करें। व्हाट इज योर आंसर? सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, नंबर भी सेम है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। सो करंट शुड बी अपोजिट डायरेक्शन फ्लो, तो करंट शुड बी वी कांट से हैं। ओके लेट्स चेक। देखिएगा अभी मैंने आपको नेट फ्लो नेट चार्ज का कंसेप्ट सिखाया था, वो यहीं यूज होगा। ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, गॉट द पॉइंट। यहाँ से 40 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ किधर से किधर जा रहे हैं? 40 इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट, ठीक है, ये राइट है मेरा, ठीक है, ये राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है, ये राइट ये लेफ्ट। कितना जा रहा है? 40 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड प्रोटॉन्स किधर से जा रहे हैं? सर लेफ्ट टू राइट। ओके, ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं 40 प्रोटॉन्स। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इट मीन्स नेगेटिव जो चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर फ्लो हो रहा है। सो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? दिस इज ड्यू टू क्यू नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे चार्ज ई होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, तो ये किधर फ्लो हो रहा है? लेफ्ट टू राइट। एंड वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज। सो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज करंट क्या होगा? सर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो देयर नेगेटिव चार्ज का करंट भी है और पॉजिटिव चार्ज का करंट भी है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन करंट। Okay, so there will be average current exist, it is not zero. So what is the value of, you can say I net is equal to current due to negative charge plus current due to positive charge. Am I right? So you can say what is the current? Sir Q negative divided by time, ये हो जाएगा Q positive divided by time, and time is same 10 seconds and you can put your value. Okay, Q is equal to क्या पुट करेंगे? एन ई। अब यहाँ नेगेटिव मत पुट करना क्योंकि डायरेक्शन चेक करने के लिए नेगेटिव हमने पुट कर लिया है। एन ई प्लस एन ई डिवाइड बाई टाइम टी। अच्छा दोनों का एन सेम क्यों लिया? चार्ज सेम क्यों लिया? बिकॉज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का मैग्नीट्यूड बात करेंगे तो चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी सेम है। सो यू कैन से 2ne अपॉन टी। टाइम भी सेम है। सो ये आई इज इक्वल टू कितना आ गया? ट्वाइस 40 1.6 10 to power minus 19 and time is 10 second. So what is the answer? So solve करते हैं यहाँ से 0 8 and ये हो जाएगा 1 2.8 10 to power minus 19. I think clear है?
तो ये है नेट करंट थ्रू द वायर। सो देयर एवरेज करंट इज़ नॉट जीरो, ये बात ज़रूर याद रखें, है ना। कुछ ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि सर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फ्लो हो रहे हैं, इफ दोनों इन फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन। मैंने वहाँ पे 5 कूलम -5 कूलम लिया था, वो दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे, दैट्स वाई वहाँ पे क्या हो रहा था, जीरो आ रहा था। बट नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आर फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन हियर। सो दोनों का करंट कंट्रीब्यूट करेगा, ईच अदर को सपोर्ट करेगा और नेट करंट प्रोवाइड करेगा। आई होप यू लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, शेयर जरूर करें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यस डियर स्टूडेंट, वी हैव अनदर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी। बाउंड्री पार जाना चाहिए, ट्राई करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो इफ चार्ज फ्लो वेरीज with time, yeah, you can say accordance time as given equation qt is equal to 2t square plus 3t plus 6 is coulomb, ऐसा यूनिट है कूलम, ठीक है, एंड टाइम इन सेकेंड। फाइंड इलेक्ट्रिक चार्ज एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है। ओके, एंड इंस्टेंटेनियस करंट एट t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो ठीक है। एवरेज करंट फ्लो इन टाइम इंटरवल t1 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, ये भी ठीक है। तो रेडी, क्या आंसर है, मैच कीजिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा। फर्स्ट क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एट t1। ओके, सो वी हैव equation in time form for the t is equal to 1, t is equal to 1 second. So you will find 2 1 square plus 3 1 plus 6. From here what is the answer, 2 plus 3 plus 6 कितना आ गया, 11 कूलम। Got the point? Yes, if we talk about t is equal to 2, so you will say, so 2 into time रखिए यहाँ पे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 2 प्लस 6 एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ इट, सर यू कैन से 4, ये स्क्वायर है 4 8 8 प्लस 6 6 20 कूलम, आई थिंक 6 6 12 एंड 8 20 कूलम। वेरी गुड, गॉट द पॉइंट एवरीवन, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग देयर, चेक कीजिएगा, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन। सो इंस्टेंटेनियस करंट एट t1 इज इक्वल, एंड नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, सर वी शुड बी फाउंड द इंस्टेंटेनियस करंट फॉर विच वी हैव टू डू डिफरेंशिएशन of the charge equation, so from here I instantaneous you can say dq upon dt, am I right? बहुत बढ़िया। डिफ्रेंशिएशन करें इसका, क्या मिल जाएगा आपको, 4t प्लस 3, आई थिंक यही मिलेगा, 2 आ गया था, 4t 3t, t का 1 हो गया। यस, नाउ फाइंड द एट t 1 सेकेंड पे i1 कितना आ जाएगा, 4 into 1 plus 3 that will be 7 ampere. दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट एट टाइम 1 सेकेंड पे कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, ठीक है, एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। एट टाइम 2 सेकेंड इफ वी टॉक अबाउट व्हाट विल बी दैट, सर यू कैन से i2 4 2 plus 3 that will be 11 ampere, that will be 11 ampere. Now if we talk about third, average current flow in time interval 1 to 2 seconds. So if we talk about in third equation, I average, what is the formula I average, so delta q upon delta t, क्या बोलते हैं, डेल्टा q अपॉन डेल्टा t। अच्छा, डेल्टा q क्या होता है सर, q2 माइनस q1 अपॉन t2 माइनस t1। अच्छा, व्हाट इज द q2 कितना है सर, q2 कितना है आपके सामने है, ये रहा 20 कूलम माइनस 11 कूलम डिवाइड बाई 2 minus 1, that will be 9 upon 1, 9 एम्पियर। सो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज करंट 9 एम्पियर है। इंस्टेंटेनियस करंट आप देख रहे हैं 7 एम्पियर भी आ रही है, 11 एम्पियर भी आ रही है, वो टाइम पे डिपेंड करेगी कि आप कौन सा टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं। आई होप क्लियर होगा, वेरी गुड, बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। Yes dear student, we have another question. In this question, if electric current decreases linearly decreases, straight line, ठीक है, from 10 ampere to 0 ampere, ये कुछ नहीं है, यहाँ विजिबल नहीं है, from 10 ampere to 0 ampere in 4 second
find the average charge flow through the cross section in given time. So ready, इसका आंसर बताइएगा, मैच कीजिएगा अपना आंसर. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिक्रीज हो रहा है. सो यू कैन ड्रॉ IT ग्राफ. दिस इज द I एंड दिस इज द T. ओके, 0 सेकेंड पे जो वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 10 एम्पियर. ओके, एंड 4 सेकेंड पे जो आपको वैल्यू गिवन है एट 4 सेकेंड यू हैव 0 एम्पियर. गॉट द पॉइंट. इन 4 सेकेंड करंट डिक्रीज हो रही है लीनियरली स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग. ठीक है, ऐसे डिक्रीज होके कहाँ पहुँच गई, 10 एम्पियर से 0 एम्पियर पे पहुँच गई. गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट. find the net charge flow during this time interval. So what is that? Must remember, so area of IT curve is equal to net flow of charge. This is the basic thing. ठीक है, net flow of you can say, क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से नहीं देख पा रहे, ये तो देख पा रहे हैं, नेट फ्लो ऑफ चार्ज यू कैन से. ओके, सो व्हाट इज द एरिया? सर एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज द हाफ इनटू बेस. व्हाट इज द बेस? 4. गॉट द पॉइंट. एंड व्हाट इज द हाइट? 10 एम्पियर. सो फ्रॉम दिस इज द डेल्टा क्यू. यू कैन से नेट रेट फ्लो ऑफ चार्ज. सो यहाँ से आ गया 20 कूलम. This is delta Q net flow of charge during this 4 second. So I hope you enjoy. Thank you for watching. Please like, subscribe and share. You can make it viral. Be active, be happy. All the best.